transversal. What is a transversal? A line that, इंग्लिश आना चाहिए, intersects two or more lines at distinct points is called, points को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, is called transversal. बोले तो क्या? A line that intersects two or more lines at distinct points is called transversal. बोले तो let us say ये है एक लाइन AB. Let us say ये एक और लाइन है CD. अभी एक लाइन है L. ये लाइन है L. लाइन का नाम मैंने L दिया, कुछ भी नाम दे, M बोल, N बोल, कुछ भी बोल, ये लाइन का नाम L बोला. ओके, अभी a line that intersects two or more, a line that intersects two or more, there can be one more line also, two or more at distinct points. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. देख, ये लाइन देखा, ये लाइन इसको इधर मीट कर रहा है, सेम लाइन इसको इधर मीट कर रहा है. तो क्या यही लाइन दोनों लाइन को अलग अलग लोकेशन पर मीट कर रहा है? दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पॉइंट. So let us give some name. Any name we can give, जो मन में आता है. XY. So this line L is called transversal. So I hope I made it very clear. Transversal क्या है? ये दिमाग में क्लियर. ऐसा लाइन जो दो और ज्यादा लाइन को मीट करेगा at different locations, that is called transversal. बोल, इधर तक करेक्ट है? डाउट है तो पूछ. Now everything starts. This is now the beginning of lines and angles. Now we are giving birth, and whatever I speak now, this is going to be a background for next 10 hours. Because of this transversal, everything changes. What all will happen? Next half an hour is very, very crucial. For you to make you survive. तेरे को जिंदा रखने के लिए अगले 10 घंटे के लिए ये डिस्कशन करना जरूरी है. डिस्कशन स्टार्ट्स. You too have to draw it, or you can name it in the existing one, anyhow you feel better. I will give this, but you better draw it. Okay, there are two lines, L and M, and this is N. So in this first thing I will ask you, who is transversal line? Who is transversal line? First tell me this. Which line is transversal? First, basic common sense. We are testing your knowledge. Correct. N is transversal. Very good. Okay. Now you see, I will start naming them. Okay. 1, 2, 3, 4. Now everything starts. This is a background of your entire chapter. What I am doing now. 5, 6 इधर डाल, क्या फर्क पड़ता है कि किधर भी डाल. 7, 8. Now everything starts. First one, interior angles. All the questions are on this only. सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है.
इंटीरियर एंगल्स. ओके, हु ऑल आर इंटीरियर एंगल्स? जो जो अंदर है. कैन यू गेस अंदर कौन कौन है? आई हैव टोल्ड यू वंस अगेन, it is not about you attending the class, it is about you analyzing when I am teaching, your brain analyzing when I am teaching. Interior angles 1, 4, 5 and 6, these are interior angles. Second, exterior angles. 3, 2, 7, 8. Third, correct na? 3, 2, 7, 8 are exterior. Don't copy to copy. Next, corresponding angles. हाँ, करस्पॉन्डिंग यानी क्या? एक के नीचे एक. एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी. किसके नीचे कौन है इधर ही रहने दो. एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग यानी व्हाट? 2 के नीचे 6. 2 and 6 are equal. Corresponding angles are always equal. Corresponding angles are always equal. 2 and 6 corresponding है. Do you agree? हाँ या ना? Come on, start telling me जोड़ी now. Always. All corresponding angles are always equal. दिमाग में क्लियर कर ले. If lines are parallel. हाँ, एक मिनट. हाँ, if lines are parallel. अगर लाइन पैरेलल नहीं है, zup, then corresponding angles equal नहीं है. Very important. Corresponding angles are equal if lines are parallel. नहीं तो देख कम ज्यादा, ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, अलग अलग एंगल है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओनली इफ लाइंस आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. लाइंस पैरेलल होने चाहिए. बनाते जा. अब तो दुनिया के बनते हैं. 1 और 8 बनेंगे. बहुत सारे बनेंगे अब तो, उसका कोई लिमिट नहीं है. 6 और कौन सा बनेगा करस्पॉन्डिंग में? और कौन सा बनेगा? और एक बोल दे बस. तू समझ गया? एक बार बच्चों को पूछेंगे, समझ गया? एक बच्चे से लेंगे, 2-3 ऑनलाइन बच्चों के चैट बॉक्स में लेंगे, क्या बताते मेरे को आइडिया आएगा. 3 and 5 ठीक है. 3 and 5 हो गया. और बोल 4 and 7. हाँ, ये बेटर है. 4 and 7. 3 and 5, 4 and 7 एक्सेप्टेड. चलो, मतलब तुझे समझ में आ रहा है. ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल ही रहेंगे. नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास करस्पॉन्डिंग के बाद? अल्टरनेट एंगल्स. हाँ, अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आने वाले 2 महीनों तक एंड नेक्स्ट ईयर 10 तक इसका जन्म होना ही है. ये सबसे इंपॉर्टेंट. अल्टरनेट एंगल्स यानी जेड. जस्ट याद रखो, जेड कंपल्सरी, मैंडेटरी. इट शुड बी जेड. ये पूरे 2 साल यूज करेगा. ये चैप्टर नहीं, 2 साल. इट शुड बी जेड. ओके, लाइक व्हाट? आई विल हेल्प यू. डोंट वरी, आई विल हेल्प यू. जेड ये स्टार मार्क है, मतलब देर इज नो एंड टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस. ये इतना इंपॉर्टेंट है. ये लाइन्स एंगल्स नहीं. नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स, नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स, रिलेटेड टू सर्कल, रिलेटेड टू समथिंग पैरेललोग्राम्स. यही आने वाला है. अल्टरनेट एंगल में एस्केप नहीं है. अल्टरनेट मैंडेटरी, इट शुड बी जेड. देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. एग्जाम्पल मीन्स ब्रैकेट में डाल दे. ये ब्रेन स्ट्राइक कराना जब वक्त आएगा, when the time comes, strike the things correctly inside your brain. means 2 lines are parallel. तो ही अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है. 2 लाइंस पैरेलल होंगे. देख, एक ऐसा है,
मैं यही ड्रॉ कर रहा हूं, यही ड्रॉ कर रहा हूं, ये देख, मैं फील दूंगा, डोंट वरी, मैं फील दूंगा। क्या ये 4 है और क्या ये 6 है? अब देख कैसे आ रहा है, तू इमेजिन करना है, ये तेरा ब्रेन ऐसा भी आता है। बोल ये और ये कौन सा है फिर? मैं तेरे से देखूंगा कौन बोलता है। कंपलसरी पैरेलल होने चाहिए। अब तू बोल, जो मैंने खाली जगह रखा है वो कौन सा है? मैंने जो खाली जगह रखा है इधर, वो कौन सा है? देखेंगे कितना तू इमेजिन कर पाता है। हाँ देख, 1 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेना, इंटीरियर एंगल चल रहा है। सी एक्सटीरियर, ये 1 है, देख ये 1, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये 5 आएगा। हाँ ये ठीक है, 1 and 5। ये इंटीरियर है, अंदर वाले, बाहर वाले नहीं लिए, बाहर वाले नहीं लिए मैंने। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मे बी आई स्पीक वंस अगेन, maybe I'll speak once again. I hope you are understanding. I'll speak once again. 4 or 6, 4 or 6, zoom, zoom, zoom. Next, 1 and 5, zoom, zoom, zoom. 1 and 5. ये इंटीरियर एंगल है। 4 और 6, 1 और 5, ये अल्टरनेट है। इंटीरियर, कभी भी एग्जाम में इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट ऐसा नहीं लिखते, भावना समझ जाने का, बस अल्टरनेट एंगल है। ओके, बाय द वे, अगर एक्सटीरियर एंगल लिखना है तो कौन सा करेक्ट है, मैं ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा तेरे को ड्रॉ करता हूं, देखता हूं मैं तेरा ब्रेन कितना चलता है, तेरा ब्रेन कितना चलता है। अब बोल, एक्सटीरियर लेना है तो कौन सा आएगा? ध्यान से देख, मैंने खींचा लाइन को मैंने खींचा, देख अभी तेरा ब्रेन चला, देख तेरा ब्रेन चला, तेरा ब्रेन चला। इसको हाँ, दो चीजें होगी। देख जैसा मैंने बनाया वैसा सोच, जो मैंने खींचा है वो देख, गलत, थोड़े बच्चे गलत बोल रहे हैं। ये है 3 और ये है 8, 3 और 8। यू शुड एनालाइज प्रॉपरली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 4 और 6 इक्वल है, 3 और 8 इक्वल है। अब इधर एनालाइज कर, अब इधर एनालाइज कर, इस तरह, इस जगह पे, करेक्ट। इधर एनालाइज करेगा तो ये 2 आएगा, ये एक्सटीरियर है, ये 2 है तो ये एक्सटीरियर, ये 7 है। तो 2 और 7 भी इक्वल है और 5 और 1 भी इक्वल है। तो आई थिंक सो अल्टरनेट में कंडीशन क्या है, पहले बोल, अल्टरनेट का कंडीशन क्या है? अल्टरनेट कब बोल सकता है? बेसिक रूल, व्हेन कैन यू कॉल द लाइन्स आर अल्टरनेट एंगल्स? बेसिक कंडीशन क्या है? व्हेन कैन यू कॉल द अल्टरनेट एंगल्स? व्हेन द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और लाइन्स आर अल्टरनेट। बेसिक कंडीशन, दे आर पैरेलल। इतना दिमाग में क्लियर कर दे, अगर लाइंस पैरेलल है तो ही अल्टरनेट का जन्म होगा, नहीं तो अल्टरनेट का जन्म नहीं हो सकता। दैट यू मेक इट वेरी क्लियर। टफ जॉब टीचिंग, ठीक है, बट दैट सैटिस्फैक्शन इज डिफरेंट व्हेन यू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम द किड्स स्पीकिंग राइट, एंड देन वी गेट दैट सेंस ऑफ completeness, the sense of completeness when you speak right answer, you see. Okay, कोई इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, ये सब हो गया, बस करस्पॉन्डिंग हो गया, एडजेसेंट तो पता ही है, लीनियर पेयर तो पता ही है। यस, ये था मेरा फाउंडेशन। अगर इस फाउंडेशन पे तो टिका है, पूरा लाइंस एंगल्स खत्म। अभी खेल इतना ही है। Now the job is very simple. If this you understood today's class everything, the job is only one now. The job is, when the problem comes, your brain should strike
विच इज वेयर, व्हाट इज व्हाट, हाउ टू ब्रिंग, व्हाट टू ब्रिंग एंड हाउ टू प्रूव। बस मैं फाउंडेशन करके दिया, फाउंडेशन मेरा खत्म हो गया। अब तेरा ब्रेन इन्वॉल्व होना है। मैंने सब टाइप्स करा लिए। डन, क्लियर टू यू ऑल? एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? तो बोलो।